Mathematics for class 9th, chapter quadrilateral. We have studied about some properties of quadrilateral in previous video. One of them was sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 मालूम है कि चारों एंगल्स का सम 360 होता है. So here given angles of a quadrilateral are in ratio of 3:5:9:13. Find the angles of the quadrilateral. आपको मिला है चारों एंगल्स का रेशियो मिला है. So from the very beginning I am taking angle A is equal to 3x degree, angle B is equal to 5x, angle C is equal to 9x, angle D is equal to 13x. So sum of angles of a quadrilateral is 360. So using angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. This is angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property. Of a quadrilateral. So यहाँ आप एंगल A को सब्स्टिट्यूट करिएगा 3x plus 5x, 3x plus 5x plus 9x plus 13x. It will become 360. So check how many x's are there. कितने x बन गए हैं आपके पास? 5, 3, 8, 9, 17 and 13. 30x are there. 30x is equal to 360. So x will become equal to 360 divided by 30, which is equal to 12. जो आपका कैंसल आउट फैक्टर था इन रेशियोज में वो आपके पास 12 आ गया. सो एंगल A is equal to 3 multiplied by 12, which is 36. Angle B is equal to 5 multiplied by 12, 60. In the same way, you can find out value of angle C, which is equal to 9 multiplied by x, 108, and angle D is equal to 13 multiplied by 12, which will be equal to 156 degree. So clearly you can do such questions. इस तरह के प्रश्न आपके एनुअल एग्जामिनेशन में, टेस्ट वगैरह में सिर्फ 1 नंबर का ही आता है. सो कोशिश करिए आप इनको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएं. Your next question is, diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. I have taken a parallelogram for you. A, B, C, D is a parallelogram. You have to show that it is rectangle, so I have drawn it, a rectangle in advance. So diagonals of a parallelogram are equal, which is what is given? Given is ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. इस पैरेललोग्राम को आप जो साथ देख रहे हैं तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आप इसमें यूज कर सकते हैं. एडिशनल है डायगोनल्स आर इक्वल, इन विच diagonals are equal. AD is equal to BD. AD is equal to BD. यहाँ कोशिश करें, मैंने ABC ट्रायंगल को, मान लीजिए ये ओवरलैपिंग ट्रायंगल थी, ABC ट्रायंगल को इसके ऊपर से हटाकर यहाँ ले लिया और ट्रायंगल BAD को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले लिया है. सो आई हैव टेकन दिस as two separate triangles. ध्यान से देखें, ABC ये ट्राइंगल पूरी की पूरी हमने यहाँ ली है. ABD ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल यहाँ ली हुई है. शो दैट इट इज रेक्टेंगल. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है आपके पास, ये साइड बराबर इसके, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम यहीं लिख सकते हैं हम. AD इज इक्वल टू BC. AB कॉमन है, ये साइड इसमें कॉमन है और डायगोनल्स आपको बराबर मिले ही हैं.
सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाई एस एस एस। तो उसके बाद आप लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो लेट्स सॉल्व इट। टू प्रूव ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. In order to prove it a rectangle, we have to prove that its one angle is 90 degree. ABCD is a rectangle. So there is no need to construct anything. You have to give proof. Proof हमारे पास है, हम इन्हीं दो ट्राइंगल्स में ले रहे हैं. Simply I am taking angle in triangle ABC. In triangle ABC and BAD. AB is equal to BA, common. AB is equal to BA और AB is equal to AB कॉमन. मैंने आपको यहाँ बताया था ये AB और ये BA या AB और AB दोनों ही कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है. AB और BA लिखने में कोई अंतर नहीं. AB is equal to BC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. अभी तक ये रेक्टेंगल नहीं है. AD is equal to BC. The reason is opposite sides of a parallelogram, and BD is equal to AC or AC is equal to BD. It is given. Diagonals are equal. So आपके पास अब यहाँ ये दोनों ट्राइंगल्स, अब दोनों ट्राइंगल यहाँ से देखें ABC और BAD. These two triangle, therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SSS property. Therefore angle A, I am taking this full angle, और DAB और CBA, ये दोनों एंगल्स आप CPCT से बराबर ले लें. Therefore angle 1 is equal to angle 2. Therefore angle 1 is equal to angle 2 CPCT. But be careful, angle 1 plus angle 2 is equal to 180. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary, but angle 1 plus angle 2 is equal to 180. We have studied a property that adjacent angles of a parallelogram are supplementary. इस प्रॉपर्टी के कारण इन दोनों एंगल्स का सम 180 है. सो यू कैन रिप्लेस दिस 2 और रिप्लेस 1. इस 2 को हटाकर 1 के इक्वल लिखते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. सो इट विल बी 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 और एंगल 1 विल बिकम 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. A parallelogram with the right angle is a rectangle. Therefore ABCD is a rectangle. You can do it. It's so simple. I am taking your next question. ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है और बच्चे अननेसेसरी से मुश्किल कर लेते हैं. Show that if diagonals of a quadrilateral, this is our quadrilateral ABCD, and AC and BD are diagonals, bisect each other at right angles. Bisect each other means AO is equal to OC and OB is equal to OD. ये पूरी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होगी. डायगोनल्स कौन से हैं, बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है, और राइट एंगल्स और बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है. Then it is a rhombus. In order to prove that it is a rhombus, you have to prove that all sides are equal. It is given a quadrilateral, not a parallelogram. यदि पैरेललोग्राम दिया हुआ होता तो हम एक ही प्रूफ में से सॉल्व कर लेते, रोम्बस अपने आप हो जाता. अब क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो गिवन आप लिखेंगे शुरुआत में
ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. AC and BD, AC and BD are diagonals such that diagonals कैसे हैं? Bisect each other. AO is equal to OC, OD is equal to OB. AO is equal to OC and OB is equal to OD. This is diagonals bisect each other at right angle. One more thing is given, angle AOD is equal to 90. Angle AOD or COD is equal to 90. ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं. BOC और इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री इच. ये सभी 90 डिग्री के एंगल हैं. यदि ये परपेंडिकुलर आपस में बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री तो चारों एंगल्स यहाँ 90 डिग्री के बनेंगे. दिस इज गिवन. देन प्रूव दैट इट इज रॉम्बस. तो टू प्रूव आपके पास क्लियर है. टू प्रूव ABCD is a rhombus or AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, or simply all sides are equal, then it will be rhombus. So I am taking here this figure. Look at this. प्रूफ में बहुत सावधानी से देखिए, मैंने कई फिगर्स पेस्ट की हुई हैं साइड बाय साइड. आई एम टेकिंग ट्राइंगल AOD एंड COD. इन ट्राइंगल AOD and triangle COD. I can write AO is equal to OC. AO is equal to OC. I can write OD common. OD is equal to OD common. And it was given. I am taking here angle 1 and this is angle 2. Means AOD angle और COD angle 90 डिग्री इच थे. सो यही रीजन मैं यहाँ दे रहा हूँ. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इच 90 डिग्री. इट इज गिवन एज वेल 90 डिग्री. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर AOD is congruent to triangle COD by SAS. Hence AD is equal to, look at this figure, if these two triangles are congruent, then these two corresponding sides are equal. AD is equal to CD. Therefore AD is equal to CD by CPCD. I am taking next two triangles. Be careful here. I am taking triangles on one diagonal. मैं यहाँ से ये ट्राइंगल लेना शुरू किए हुए हूँ. आप ये ट्राइंगल्स भी ले सकते थे पहले, फिर ये ले सकते हैं, फिर ये ले सकते हैं. इस तरह से कोई सा भी आप ग्रुप लें, कोई दिक्कत नहीं. अब मैं BD के ऊपर बने हुए दो ट्राइंगल्स फिर ले रहा हूँ. हम यहाँ इन ट्राइंगल्स की बातें करेंगे. इन ट्राइंगल्स में जब आप आएंगे तो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल COD and BOC. In triangle COD and BOC, you can write similarly here. BO is equal to OD. I am writing in sequence. OD is equal to OB. OD is equal to OB here. It is given. Diagonals bisect each other. एंगल 2 यहाँ हमने लिया था फर्स्ट इक्वेशन में. सो 2 इज इक्वल टू 3 इच 90 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इच 90. देयरफॉर एंड OC इज इक्वल टू OC कॉमन.
So be careful, these two triangles are congruent now. Therefore, triangle COD is congruent to triangle COB. I am writing this name in alternate form by ASS. यहाँ दो साइड आपस में बराबर हैं, ये वाली ये एंगल बराबर है और ये साइड P1 कॉमन है. Therefore, CD is equal to BC. Therefore, CD is equal to BC CPCT. This is relation 2. This is relation 1 by CPCT. So, you have to use one more triangle here. Clearly in these two triangles, यहाँ देखें एंगल 1 था 2, ये 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, सिमिलर ले लूँगा. AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. देयरफॉर सिमिलरली मैंने दो प्रूफ दे के दिखा दिया, आप पहले में सिमिलरली लिख सकते हैं. सिमिलरली BOC एंड BOA, triangle BOC is congruent to triangle BOA. Therefore, by CPCT, BC is equal to AB. मैं पिछले रेफरेंस ले रहा हूं, आपको भी ये कॉन्ग्रुएंट करने चाहिए और कंडीशन वही है SS. सो CPCT से जब आप प्रूव कर चुके, पहले हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया AD CD के बराबर था, CD BC के बराबर था और अब BC AB वास्तव में बराबर आ गया. दिस इज योर रिलेशन 3. सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 we get all sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to BA. Therefore, ABCD is rhombus. Rhombus शॉर्टकट में लिख देता हूँ RH. Let's take your next question. Show that diagonals of a square are equal, bisect each other at right angle. What will you take a square? A square is a quadrilateral in which all sides are equal. A square is a quadrilateral in which all angles are 90 degree. So 90 डिग्री के सभी एंगल्स आप ले सकते हैं. स्क्वायर है, सभी साइड्स आप इक्वल ले सकते हैं, तो उनके बीच आपने फिर डायगोनल्स इक्वल करने हैं. मैं यहीं आ रहा हूं. ABCD is a square given. I am not writing it. ABCD is a square in which AC and BD are diagonals. Diagonals intersect each other at O. Show that diagonals are equal. We have to prove that BD is equal to AC. BD is equal to AC and they bisect each other, means AO is equal to OC, BO is equal to OD and angle 1 is equal to angle 2 each 90. आपको ये दोनों तीनों चीजें प्रूव करनी है. शुरुआत में हम आते हैं, ये ट्राइंगल ABC में कॉपी करके यहाँ ले आया हूँ, ट्राइंगल BAD कॉपी करके हम यहाँ ले आए हैं. तो यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, AB इज इक्वल टू BA है, यानी ये साइड इसके बराबर है, कॉमन. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B each 90. Angles of a square. AD is equal to BC, all sides are equal. AD is equal to BC, sides of a square are equal. Therefore, this triangle DAB CBA के कॉन्ग्रुएंट है और ABD
BAC के triangle ABD is congruent to triangle BAC. सो CPCT से यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ दी है SAS से, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसी वजह से CPCT से हम लेंगे BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू, देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC. तो एक बात तो हमारी प्रूव हुई कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. अब डायगोनल्स आर इक्वल, बाद में आपको बताना है बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स AO इज इक्वल टू OC भी करना है और BO इज इक्वल टू OD भी करना है. सो अब हम ले रहे हैं ये दो अपोजिट ट्रायंगल्स. ध्यान देना, एक ट्रायंगल में ले रहा हूं ये वाली और एक ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाली. मैं यहां एंगल 3 ले रहा हूं. सो यहां देखें आराम से, क्या आप बता सकते हैं यहां जो एंगल्स दिए हुए हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही. सो हम यहां जो कोशिश करेंगे वो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, उसके बाद ये ले रहा हूं. AD इज इक्वल टू BC, यही करके दिखाता हूं इन ट्रायंगल AOD एंड COB और BOC, कुछ भी ले लेना, एंड ट्रायंगल BOC. यहां आराम से देखें, 1 2 3 में लिख चुका हूं. सो दिस इज 4, दिस इज 5. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, 4 इज इक्वल टू एंगल 5. ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं ये, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है. और एंगल 6 इज इक्वल टू 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7. यहां आप और भी लिख सकते हैं, एंड AD इज इक्वल टू BC, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल. सो अब देखें, ये साइड आपस में बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए. देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय ASA. यदि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC CPCT, AO इज इक्वल टू OC CPCT एंड BO इज इक्वल टू OD. ये भी CPCT. सो हमने एक बात यहां सिद्ध कर दी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब राइट एंगल वाला फंडा और रह गया है आपका. राइट एंगल वाला जो फंडा रह गया, तो आपको ये ट्रायंगल्स दो लेने हैं. ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं कोशिश कर रहा हूं थोड़ी सी इसकी. AD इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल. AO इज इक्वल टू OC, diagonals bisect each other, we have proved here, and OD is equal to OD common. So ये साइड इसके बराबर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर. AO is equal to OC, diagonals bisect each other, and DO is equal to DO common. So these two triangles will be, I am using 0 here, 0 here. ये जो दो ट्रायंगल आपके पास दिखाई दे रही हैं, ये दोनों हम लिख रहे हैं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SSS. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2, बट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180. तो यहां आप लिख सकते हैं, 2 को हटाकर 1 लिख सकते हैं. 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 और एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90.
ये एंगल 190 का हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये साइड बाय साइड काफ़ी लंबे हैं और छोटे छोटे आपको इसको सॉल्व करना है। छोटे छोटे पार्ट ले लें और उसके बाद इसे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। Show that diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. रोम्बस तो हम करके आए थे, याद हो तो आपने किया था show that diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. वहां इक्वल नहीं लिखा था, ध्यान देना। अब की बार हमें इक्वल भी मिला है, यानी फिर सभी ईच एंगल 90 भी करने हैं आपने। गिवन है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है आपका, सावधानी से देखिए। गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, diagonals are equal, AC is equal to BD, AC is equal to BD, diagonals are equal, bisect each other, and AO is equal to OC, OB is equal to OD. Diagonals bisect each other. At right angle means AOD is equal to 90 degree. To prove है it is a square और ABCD is a square. To prove है ABCD is a square. अब आपने दो बातें यूज करनी है। पहले तो इसको रोम्बस सिद्ध कर लीजिएगा। क्या आपको मालूम है कि हमने पीछे रोम्बस जब सिद्ध की तो AO इज इक्वल टू OC यूज करते थे, OD कॉमन था, और ये वाला एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, राइट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था। प्रीवियस प्रूफ जब हम दे रहे हैं यों का यों, तो यहाँ प्रूफ मैं इसी फिगर से दे रहा हूं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, AO is equal to OC given, OD is equal to OD common, and angle 1 is equal to angle 2 each 90. This is given. Diagonals bisect each other at 90. ये कॉमन है। Diagonals bisect each other at right angle each 90. Therefore, triangle AOD is congruent to triangle COD. So, by SAS, यहां CPCT से हम लेंगे AD is equal to CD. Therefore, AD is equal to CD. Relation 1. Therefore, CPCT. अब यहां मैं आगे और बहुत लंबे प्रूफ इसके नहीं दूंगा। इस फिगर से हम ले सकते हैं दूसरी इक्वेशन सिमिलरली। Similarly, CD is equal to BC. CD is equal to BC. ये इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इसे इक्वेशन 2 ले लेता हूं, और अब आगे भी एक और आप यूज कर सकते हैं। CD is equal to AB। अगली फिगर में यहां मैंने लिखा हुआ है सिमिलरली CD is equal to BA और AB। This is your relation 3. From 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3. Can we say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA? Means ABCD is rhombus. पार्शियल हमने ऑल साइड्स आर इक्वल तो कर दी।
अब हम आएंगे इसमें एक 90 डिग्री का एंगल प्रूव करने के लिए। 90 डिग्री का जब हम एंगल प्रूव करेंगे तो यहां आपको लेके आता हूं। मैंने ये दो सेपरेट ट्रायंगल्स कर लिए हैं, BAD अलग और ABC अलग। सो यहां देखें, इन ट्रायंगल मैं नीचे की तरफ ले लेता हूं फिगर्स और लिखने का काम अपना यहां बढ़ाता हूं। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC। AB इज इक्वल टू BA साइड इज इक्वल टू AB। यहां देखें कॉमन है। क्या आपको हमने डायगोनल्स इक्वल कर लिए थे, डायगोनल सारे इक्वल दिए हुए हैं। BD इज इक्वल टू AC। BD इज इक्वल टू AC, डायगोनल्स आर इक्वल। बाइसेक्टर चदर भी करने थे, डायगोनल्स रोम्बस हो गया है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्टर चदर तो हम ले सकते हैं। मुझे चाहिए ये 90 डिग्री एंगल, तो AD इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू BC। आई हैव प्रूव्ड इट। रीजन देखें, BA इज इक्वल टू AB इज द सेम साइड इन बोथ ट्राइंगल। ये मैं यहां से लाया हुआ हूं, ये आप आराम से समझ लें। और एक ट्राइंगल ये है, AB के ऊपर बनी हुई दो ट्राइंगल हैं जो वर्टेक्स C तक और एक AB बेस और वर्टेक्स D तक, ये दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ पेश की हुई हैं, ये इसी का हिस्सा है। AD इज इक्वल टू BC प्रूव्ड, हमने ये सिद्ध कर लिया। हमने ऊपर लिखा था कि सारी साइड्स बराबर हो चुकी हैं इसमें। BD इज इक्वल टू AC, डायगोनल्स आर गिवन इक्वल। तो यहां हम देखते हैं कि ट्राइंगल BAD इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC हमारा हुआ है। एंगल BAD इज इक्वल टू ABC CPCT। यहां हम ट्राइंगल्स को पहले लिख लें। देयरफॉर ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाई SSS। एक लाइन मैंने बीच में छोड़ दी थी, ये करेक्शन कर दी है। सो BAD एंगल इज इक्वल टू ABC। BAD एंगल ये है, एंगल 1, एंगल 2। यहां एंगल 1 यही है पूरा और B है यहां पूरा 2। तो इन फिगर्स में जब हम आगे आते हैं तो बहुत आसानी से आप यहां लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। रोम्बस तो हो ही गया था, ऊपर मैंने ये रोम्बस सिद्ध कर लिया था, तो पैरेललोग्राम के बजाय रोम्बस लिख देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, बट दिस इज इक्वल टू BAD का नाम है एंगल 1 और ABC का नाम है एंगल 2। सो एंगल 1 प्लस 2 180 भी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी है। तो हम यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 करें, 2 टाइम्स एंगल 1 is equal to 180 और in this way you can prove that angle 1 is equal to 90 degree। जब आप एंगल 1 90 डिग्री कर देंगे, so I have proved it in 2 phases। ABCD is a rhombus having a right angle, so this is definition of your square। Therefore ABCD is a square। ABCD is a square। ये छोटे छोटे स्टेप्स ले लें, उनको बहुत आसानी से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है, मुश्किल नहीं है। डायगोनल AC of parallelogram ABCD bisects angle A, show that
it bisects angle C as well. Then ABCD is a rhombus. गिवन है, बहुत आसानी से लिख लीजिए, ABCD is a rhombus. Sorry, diagonal, parallelogram. ABCD is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आप इसमें यूज करेंगे. AC bisects angle A means angle 1 is equal to angle 2. If AC bisects angle A, therefore angle 1 is equal to angle 2. So कंस्ट्रक्शन हमारी कुछ भी नहीं है, टू प्रूव है. दो चीजें आपको दी गई हैं, ऊपर लिखी हुई यहाँ की यहाँ. इट मीन्स AC bisects angle C. AC bisects angle C का मतलब है एंगल 3 इज इक्वल टू 4 करना. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दूसरा है ABCD इज रोम्बस. फर्स्ट पार्ट में आपने 3 इज इक्वल टू 4 करना है और सेकेंड पार्ट में आपने करना है ABCD इज ए रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम दिया हुआ है, केवल एक साइड इसके बराबर आप कर देंगे तो भी आपका काम चलेगा. यहां हम आ रहे हैं बहुत आसानी से, प्रूफ दे रहा हूं, बेहद इजी क्वेश्चन है, ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं. AB पैरेलल CD अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AB. BC parallel AD. Therefore, angle 1 is equal to 4. Alternate interior angles हैं ये, and angle 3 is equal to 2 और 2 is equal to 3. यहाँ आप सावधानी से देखें, एंगल 1 is equal to 2 दिया हुआ था, 1 is equal to 4 है और 4 is equal to 3 है. सो यहां आप जब देख रहे हैं तो 1 और 2 तो इक्वल थे, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 4. एंगल 3 इज इक्वल टू 4 होते ही AC bisects, देयरफॉर AC bisects एंगल C. अब दूसरा पार्ट जब हम करेंगे तो यहां बहुत आसानी से आइए, एक ही रिलेशन काफी है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, ये गिवन है. सेकंड पार्ट का प्रूफ दे रहा हूं, एंगल 2 इज इक्वल टू 3. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 3. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. यदि आप यहां 1 और 3 इक्वल कर सकते हैं तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD. साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स. AD यदि CD के बराबर आ गया तो यही डेफिनेशन होती है रोम्बस की. A parallelogram having a pair of adjacent side equal, therefore it is a parallelogram with AD is equal to CD. Hence ABCD is rhombus. यहाँ फिर सावधानी से देखें, यदि ये साइड इसके बराबर हमने सिद्ध कर दी तो ये साइड तो इसके इक्वल थी, opposite sides of a parallelogram. CD is equal to AB थी, so all these sides are equal. It is a parallelogram with AD is equal to CD, therefore ABCD is a rhombus. So